degeneration, then vegetative propagation, etc. Vegetative propagation, merits and demerits. Can you say what are the merits and demerits of vegetative propagation? Hello. Sir, it takes very short period of time. Yes. Then without sexual with short period of time, and if parental characters can be restored, that means if anybody or any botanist, any person can keep the parental characters, then parental character can be restored, because in case of the vegetative propagation, no two types of the gametes are fused. As a result of this, no variation takes place. If no variation takes place, then parental character should be restored. First point, that is within a short span of time, huge number of plants can be produced. Second one, if parental character that is want to restore, it can be restored by the means of vegetative propagation. Next one, spore formation. Spore formation and sporulation already you have studied regarding spire, that means regarding rhizopus and mucor, presence of sporangium, spore forming structure known as sporangium. Okay, but आपका आवाज बहुत कट रहा है. हाँ, spore forming structure. हेलो हेलो, अभी ठीक आ रहा है? हेलो. Yes sir. Yes, sir. यस सर, क्लियर है आपकी आवाज. ठीक. अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन जनरली हम लोग जानते हैं स्पोरेंजियम. ओके, स्पोरेंजियम, that means spore formation takes place or spore formation. But special type of the spore formation which are known as the zoospores. Zoosporangium, where the zoospores are developed. In which organism zoospores are found? Hello, in which organism zoospores are found? Sir. Hello. Phycomycetes. Phycomycetes. Phycomycetes, not Phycomycetes. Chlamydomonas. You will remember Chlamydomonas. Zoosporangium. Zoosporangium. Sporangium. Zoospores. Zoospores are the motile spores. Motile spores mean the spores can move one place to another, and during this period they can shift one place to another. That's why these are known as the zoospores. Where takes place, it is Chlamydomonas. It is Chlamydomonas. Chlamydomonas. You will remember it. In Chlamydomonas, special types of spore developed inside the zoosporangium. Zoospores are released, and zoospore can shift one place to another. It occurs or it found only in Chlamydomonas. Okay. Another is Conidia. Conidia. You have studied Conidia. Where it is found? Sir, penicillium. Conidia. Hello. Conidia. Conidia is found. Penicillium. Penicillium. Yes, very good. Penicillium. Conidia is found in penicillium. Conidia is found in penicillium. Is found in penicillium. 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 इसमें क्या होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. This is structure of the body. Penicillium. This is conidiophore. Conidiophore. P-H-O-R-E. Conidiophore. This is conidiophore. Okay. And this conidiophore, where the conidia are released, इसमें बहुत सारा conidia जब ब्रास्टिंग होता है तब क्या होता है, वहां से रिलीज होता है conidia. Okay. Conidia released and conidia act as new individuals. Okay.
Next one, gemmules. Yesterday I discussed gemmules. Gemmules क्या होता है? What do you mean by gemmules? Gemmules. Gemmules. Gemmules means So क्या they're होता है? found in sponges. हाँ, gemmules Sponges. इसमें आपका है internal asexual reproductive units. Internal Asexual reproduction. internal asexual reproductive unit or it is called bud or bud bud. It is found in sponges. Example, sponges is developed within the parental body and released during the germination. Okay, so this is all about the gemmules, internal asexual reproductive unit of bud. Example, sponges. So these are the spore formation takes place, that is zoospores, conidia, and gemmules. Some other not given in your NCERT book, that is basidium. In which organism basidia are developed? Hello? Basidia. Basidia फंगस में होता है. कौन फंगस में? हेलो? हेलो, कोई बोल नहीं रहे? Yes, sir. हाँ, basidium. Agaricus. Ah, yes, right answer. Piyush Goyal. Who is saying the answer? Hello? Sir, I don't know. Yes, sir. Priyanshu. Priyanshu. Sir, Priyansh. अच्छा, ठीक, थैंक यू. ये फंगस में होता है जिसमें बेसिडियम और बेसिडियोफोर होता है. बेसिडियम रिलीज होता है and they are also type of spore formation. It is found in Agaricus biporus, Agaricus campestris, etc. Okay. Now, vegetative propagation आप कल जो डिस्कस किए थे, ऑलरेडी डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिगार्डिंग. नाउ different vegetative propagules through which the new plant can be developed. bulbil किससे होता है? bulbil, B-U-L, इसको लिख सकते हो bulbil. agave, A-G-A-V-E, एक plant है, इसमें bulbil एक special type of structure, vegetative structure, जिससे वो हो सकता है. bulb किससे होता है? onion. Next one, eyes, potato. इसके बाद है आपका lip buds. किसमें होगा lip? Brophyllum. Next one, offset, water hyacinth. Yeah. Yesterday I discussed regarding water hyacinth. A rapid vegetative propagation takes place in case of the water hyacinth. इसीलिए इसको बेंगोल टेरर माना जाता है. Occupy the surface of the aquatic body and that is cut off the direct link between atmosphere and water. The aquatic animals, those who are living in the aquatic body, they are not getting sufficient quantity of oxygen. Last में क्या होता है ना, death हो जाता है. This is called the eutrophication. This is harmful effect of the eutrophication. Okay. Next, rhizome, ginger. इसके बाद runner, oxalis, एक प्लांट होता है oxalis. इसके बाद आपका sucker, mint plant, MINT. इसको आप याद रखोगे. These are the vegetative
where vegetative propagation takes place. साकार एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसमें मेन प्लांट में रानर ऑक्सालिस, राइजोम जिंजर आपको पता है, बल्बिल एनाबिल, बल्ब ओनियन, आइस पोटैटो, लीफ बॉड्स ब्रायोफाइलम, ऑफसेट क्वार्टर हाइसिन। ठीक है, जनरली स्टेम्स और रूट के बारे में नहीं यहाँ है। स्टेम से तो आपको पता है, स्टेम इसमें अगर लिखे तो स्टेम से शुगर केन, Hello, sir. रूट से, रूट क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। कितना सारा ये है, अच्छा। नाउ कुछ डेफिनेशन लिखना, लिख रहे हैं ना, कॉपी है आपका पास? हेलो, Yes sir है। Yes, Yes sir है। कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखना। नेवर इग्नोर दिस चैप्टर, although very easy chapter, but never ignore this chapter. Definition as well as a short question asked in the board examination. Juvenile phase definition. Juvenile phase. Juvenile phase definition of organism go through a phase go through a phase to attain the stage of growth and maturity. Growth and maturity. Before they can reproduce sexually. This is known as juvenile phase. Definition means, आप लिख लो definition को, all organisms go through a phase to attain the stage of growth and maturity before they can reproduce sexually. This is known as juvenile phase. सर इस फेज को वेजिटेटिव फेज भी तो बोलते हैं ना? हाँ, इसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिफोर मैच्योरिटी, दैट मींस रिप्रोडक्शन से पहले जो भी जो फेज होता है इसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है। मैच्योरिटी पहले तो ग्रोथ होगा, उसके बाद मैच्योरिटी, देन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से पहले जो फेज होता है दिस इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। ओके, नेक्स्ट वन वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। इसको आप लिख के लिखोगे वेजिटेटिव फेज, ठीक है। आप जो बोलो सही है, वेजिटेटिव फेज भी लिखो इसमें। इसके बाद आप स्ट्रा साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कंप्लीट हो गया ये। हेलो सर एक मिनट रुक जाइए। Sir, in plant it is known as vegetative phase ना? हाँ, जुवेनाइल फेज को भी वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
Next, estrous cycle. Cycle. Important, very important for your examination. Estrous cycle. O-E-S-T-R-U-S. Estrous cycle. In non-primates, in non-primates में आपका cow, sheep, dog, etc. हो जाएगा. The female reproductive cycle is known as estrous cycle. Estrous cycle नॉन प्राइमेट्स में होता है. काउ, डॉग, शीप एक्सेट्रा. इसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है that is occurs once in year. This is known as the estrous cycle. Dog में भी होता है, cow में भी होता है, once in a year. That is called the estrous cycle. Now menstrual cycle. सर एक बार एस्ट्रोस साइकिल आप फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया. Yes. That means in case of the non-primates, that means dog, cow and sheep. इसमें क्या होता है ना, सेक्सुअल डिजायरनेस और सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल occurs in a particular season of the year. Okay, this is known as the estrous cycle. But in case of the primates, where the reproductive cycle occurs frequently, this is known as the menstrual cycle. Menstrual cycle का definition आपको लिखवा देते हैं. In primates, menstrual cycle. Menstrual cycle in primates. In primates, इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं monkey, ape, humans. Monkey, ape and human. The female reproductive cycle. The female reproductive cycle is known as menstrual cycle. आप जानते हैं जो in case of the human beings, the sexual cycle or reproductive cycles that in case of female occurs 20 days interval. 20 days interval में होता है, जिसको हम लोग menstrual cycle बोलते हैं. पता है ना? हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. हाँ, Yes, 28 days interval में Yes, in sir. case of the human female जो reproductive cycle चलता है 28 days interval. Okay, this is called the reproductive cycle or we can say the menstrual cycle. But in case of the non-primates में dog हो गया, इसमें cow हो गया, sheep हो गया, इसमें क्या होता है ना 28 days interval में नहीं होता, उसमें once in a year. ठीक है, ईयर में एक बार होता है या हार्डली 2 बार भी हो सकता है. उस समय रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उस समय सेक्सुअल डिजायरनेस लोग में ज्यादा होता है एंड इस कारण से द साइक्लिक पाथवे इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नोन एज द estrous cycle.
तो क्या डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बताओ एक बार। Sir, estrous cycle lower in हाँ? lower invertebrate. बोलिए। Sir, Sir, ostrich estrus- cycle happens in non-primates and हाँ। menstrual cycle happens in primates. प्राइमेट है तो ठीक है, लेकिन दोनों साइक्लिक पाथवे में क्या डिफरेंस है? एक 28 और डेज में रेगुलर होता है और उसमें क्या होता है, वंस और ट्वाइस इन ईयर होता है, ठीक है, होता है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, इसको याद रखोगे, दोनों का डिफरेंस पूछता है एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके बाद आप डेफिनेशन में आ जाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, डेफिनेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है, यहाँ भी आपको पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया आपको लेना है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, genesis and oogenesis. Spermatogenesis means क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या होता है ना, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, oblique sperm. Oogenesis, formation of female gamete, female gamete, oblique egg, एग और स्पर्म डेवलपमेंट होता है, अगर एग डेवलपमेंट होता है तो oogenesis, स्पर्म डेवलपमेंट होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, कंप्लीट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म और एग हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है सर। Haploid. Sir, haploid होता है. हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास में तो अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, डिटेल्स एग का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। स्पर्म जस्ट जनरली एक आइडिया दे देते हैं, स्पर्म दैट मींस स्पाइरल स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर में हेड होता है, हेड का ऊपर में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन होता है, एक्रोजाइम एंजाइम सिक्रेशन होता है, हेड के बाद नेक, नेक के बाद टेल होता है, ठीक है। तो नेक में ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी रिजनरेशन करता है, हेड में न्यूक्लियस होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है उसमें कंट्रोलिंग पावर है, सब चीज हेड में है। और फॉर डिसॉल्विंग द वॉल ऑफ द एग्स, एक्रोजाइम एंजाइम सीक्रेट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पर्म। बहुत सारा एसिड भी सिक्रेशन होता है, एंजाइम भी सिक्रेशन, हायर लाइन न्यूडेज एंजाइम भी सिक्रेशन होता है, ये सब एक्रोसिन एंजाइम सिक्रेशन होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम सिक्रेशन होता है टू डिसॉल्व द वॉल ऑफ द एग। एक तो राउंड स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर में कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा, ये सब कवरिंग स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन उसको कैसे डिसॉल्व किया जाए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 12th क्लास में डिटेल्स पढ़ना है, बट एग एंड स्पर्म का स्ट्रक्चर वहां भी पढ़ना है आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आइडिया तो है आपको, उसका कुछ ना कुछ आइडिया है, एक का स्ट्रक्चर में। अच्छा, ओव्यूलेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ओव्यूलेशन? Sir, release of ovum from the ovaries. ओवरीज का कौन पोर्शन से होता है? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर होता है उससे रिलीज होता है, तो इसको बोलते हैं Yes, sir. ovulation, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका हेटेरोगैमेट्स किसको होता है? व्हाट डू मीन बाय हेटेरोगैमेट्स? आइसोगैमेट्स एंड होमोगैमेट्स। क्या होता है हेटेरोगैमेट्स? Yes, sir.
Sir, if both male and female gametes are in same then it is called by the isogametes और homogametes. दोनों morphologically similar होता है, but heterogametes में दोनों morphologically dissimilar. They are not, that means morphologically same. That's why they are known as the heterogametes. ठीक है? अच्छा, homothallic, heterothallic, monoecious, dioecious, आपका कोई concept है? Monoecious और dioecious क्या है? Monoecious याद रखोगे, सब छोटा मोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है. मोनोइसियस, yes sir. मोनोइसियस देखो लिखते हैं मोनोइसियस, MONOCEOUS, मोनोइसियस और डाओइसियस. मोनोइसियस एंड डाओइसियस. मोनोइसियस MONOECIOUS, डाओइसियस CIOUS. ये दोनों में क्या डिफरेंस हमको बता. What are the difference? सर मोनोशियस में दोनों फीमेल एंड मेल गैमेट रहता है, डाइशियस में सिर्फ एक ही रहता है. नहीं, एक चीज आप Sir, कर देते हैं आप. सर मोनोइसियस बाइसेक्सुअल होता है और डायोसियस यूनिसेक्स. हाँ, मेल और Yes. फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डायोसियस कहा जाता है, जिसको हम लोग फांगी में पढ़े हेटेरोथैलिक और होमोथैलिक. दोनों सेम है. होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, होमोथैलिक मीन मोनोइसियस और हेटेरोथैलिक मींस डायोसियस. हेटेरोथैलिक में क्या है ना, मेल एंड फीमेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो टू डिफरेंट इंडिविजुअल में होता है, और उसमें क्या होता है सेम इंडिविजुअल में होता है. ठीक है, मोनोइसियस. अच्छा, आगे गए स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर. क्या होता है स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर? आप 11 में पढ़े हो. स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर. yes स्टेमिनेट sir. staminate flower and pistillate flower. सर स्टैमिनेट फ्लावर में खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिलेट फ्लावर में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. Unisexual male flower, और इसमें होगा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर. ओके, ठीक है. पिस्टिलेट, स्टैमिनेट, पिस्टिलेट डेफिनेशन याद रखोगे. स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर. अच्छा, हार्माफ्रोडाइट तो पता है. हार्माफ्रोडाइट क्या होता है? हार्माफ्रोडाइट जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन. दोनों ही मेल और फीमेल एक ही सर दोनों ऑर्गन. गैमेट्स एक साथ करते हैं. अच्छा सुनो, 11th क्लास में मैंने बताया था जो although male and female sex organ are located in the same body, why the another individual is required during sexual reproduction. Earthworm or leech में hermaphrodite, they have both the male and female sex organ, but during sexual copulation, why another individuals are required? सर बिकॉज सर जो दोनों मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, दोनों एक सर्टेन टाइम पे सर एट अ टाइम दोनों मैच्योर नहीं होता है. तो कोई पहले मैच्योर करता है या फिर कोई बाद में. सर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर करता है. ये क्वेश्चन है. ठीक है, राइट, थैंक यू. एक time- another is that is location of male. उसमें तो बॉडी सेगमेंटेड होता है. अर्थवर्म में, लीच में बॉडी सेगमेंटेड हो. यस सर. मेल सेक्स ऑर्गन किसी एक सेगमेंट में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी दूसरा एक सेगमेंट में है. इसीलिए क्या होता है ना, इसमें दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है. इस कारण से ड्यूरिंग द कॉपुलेशन अनदर इंडिविजुअल्स इज रिक्वायर्ड. ओके, अच्छा नेक्स्ट वन. और भी इस चैप्टर में बहुत सारा है छोटा मोटा. आप लोग इसको मियोसाइट, ये भी आता है एग्जामिनेशन. मियोसाइट, व्हाट इज मियोसाइट? डेफिनेशन लिखो, कल बताए थे लेकिन इसको लिख लेना है, याद नहीं रहेगा. मियोसाइट,
मियोसाइट। मियोसाइट का डेफिनेशन ठीक से अगर लिखना है तो लिखो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, organism produce gamete produce gamete by mitotic division, mitotic cell division, mitotic cell division. Diploid organism undergoes meiosis. Meiosis of specialized cell called myocyte. ठीक है, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कोई बात नहीं, उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, बट डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो सेल है अंडरगो मियोसिस, जो सेल व्हिच अंडरगो मियोसिस are known as the myocyte. The cell, see the simple definition, the cell which undergoes meiosis are known as myocyte. याद रहेगा, the cell which undergoes, the diploid cell which undergoes meiosis are known as myocyte. Okay. अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं, इस चैप्टर में भी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी का अंदर में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी का बाहर में होता है। बहुत सारा फिशेस है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। कैन यू डिस्टिंग्विश देन व्हिच फिशेस वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन व्हिच फिशेस वेयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? हेलो, बताओ। एक फ्रेश वाटर फिश होता है और एक मैरीन फिश होता है। मैरीन फिश में इंटरनल होता है, हाँ बताओ। सर फ्रेश वाटर फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रेश वाटर फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यस मैरीन फिशेस में होता है, याद रहेगा? यस सर। हेलो, Yes, sir. याद रखोगे। मैरीन फिश जो है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो फ्रेश वाटर फिशेस उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारा ये है, आउटसाइड कॉल्ड एक्सटर्नल, लार्ज नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द, ठीक है, एग्जांपल बोनीफिश, फ्रॉग्स, मेजोरिटी, ठीक है, आपको ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी का अंदर में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी का बाहर में होता है, ये याद रखोगे। फिशेस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो भी फ्रेश वाटर फिशेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है आपका मैरीन फिशेस में, ठीक है, तो ये याद रखोगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप सीधा ओविपेरस एंड विविपेरस क्या होता है, ये तो जूनियर क्लास में पढ़े हो। सर Yes, sir. जो में एक ओविपेरस एंड विविपेरस। फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आगे क्या आता है, ओवो विविपेरस। यस सर। वो क्या है? यस सर। कभी टेक्निकली सुना है लेकिन ऐसे सर जिस अच्छा, आरेख है प्लांट में ओविपेरस विविपेरस होता है, कोई आइडिया है प्लांट में? नो सर। 11th क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, एक प्लांट है मैंग्रोव प्लांट, उसमें जो सीड्स जर्मिनेशन होता है विद इन द फ्रूट्स,
दिस इज नोन एज द विविपेरी जर्मिनेशन और विविपेरस जर्मिनेशन। ठीक है, फ्रूट का अंदर में सीड जर्मिनेशन हो जाता है मैंग्रोव प्लांट में। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? सर रीजन क्या है? क्योंकि मैंग्रोव प्लांट्स यहाँ होते हैं और सॉइल लीकी होता है, दैट मींस अगर सीड डायरेक्टली फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, उसमें क्या होगा? वो जर्मिनेट नहीं कर पाए, क्यों ना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द माटी सॉइल इज वेरी लेस। लेकिन अगर जर्मिनेटेड सीड्स अगर गिरेगा प्लांट से, तब वो दैट मींस प्लिम्यूलर रेडिकल एक्टिव हो जाएगा। इसी कारण से सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द फ्रूट, and this special type of germination in mangrove plant is known as viviparous germination। okay, याद रखोगे viviparous germination। अच्छा, oviparous viviparous, इसके बाद तो और भी इसमें है कुछ है, दैट मींस आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ोगे, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं। जुवेनाइल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्च साइकिल, ये सब हो गया, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब हो गया। अच्छा, which reproduction is more reliable? Do you think the sexual reproduction is more reliable? Reason behind it? yes sir यस सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर क्योंकि रिलायबल। इवोल्यूशन होता रहता है सर। और उसमें वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और वो asexual एडवांटेजेस है, बट यू नो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दैट मींस मोर रिलायबल होता है, क्यों ना मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों यूज होता है। बट वेजिटेटिव प्रोपागेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा लैकिंग है। ठीक है, वो उतना रिलायबल नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट रिलायबल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में है, ओविपेरस एंड विविपेरस, एग लेइंग और डायरेक्टली गिविंग बर्थ ऑफ द न्यू वंस, तो किसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवलिटी ज्यादा होता है? सर विविपेरस में। हाँ, सर विविपेरस। रीजन विविपेरस में सर विविपेरस। सर ये चाइल्ड बर्थ जब होता है तो उसके एक सर हाँ, खराब इसमें डायरेक्टली चांसेस ज्यादा होते उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होगा ना, हैं। उस पेरेंटल केयर तुरंत मिल जाता है। बट जो एक लेइंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक लेइंग ऑर्गेनिज्म में क्या है ना, उसमें एक लेइंग होता है, उसके बाद 21 डेज उसको हैचिंग